السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو آج جس طرح فلسطین اور اسرائیل میں سنگھرش چل رہے ہیں، اس سے پہلے کس بات کو لے کر چل رہے ہیں، ایک چھوٹی سی ویڈیو میں انڈین مسلم جس کو جناب آصف خان نے بنایا ہے، اس کے بارے میں یہ ہم دیکھیں گے کہ آخر یہ لڑائی کس لیے ہو رہی ہے۔ اس کو دیکھتے ہوئے پھر اس کے بارے میں تھوڑی سی باتیں کریں گے۔ السلام علیکم دوستو، میرا نام آصف خان اور آپ دیکھ رہے ہیں انڈین مسلم۔ فلسطین، مسجد اقصی، یہ وہ جگہ ہے جو دنیا کے ہر مسلمان کے دلوں میں بستی ہے۔ یہی وہ جگہ ہے جہاں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے تھے، مگر آج اسی جگہ پر مسلمانوں کا قتل عام ہوتا ہے۔ مسلمانوں کو ان کے گھروں سے بے دخل کیا جا رہا ہے۔ معصوم بچوں اور عورتوں پر ظلم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں۔ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ کیا ہے فلسطین کا اتہاس؟ کیا ہے مسجد اقصی کا اتہاس؟ کیا ہے اسرائیل کے بننے کا اتہاس؟ سب جانیں گے آج کی اس خاص ویڈیو میں۔ دوستو، مسجد اقصی کی بنیاد سب سے پہلے آدم علیہ السلام نے رکھی تھی۔ بخاری و مسلم کی حدیث میں ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ دنیا کی سب سے پہلی مسجد کون سی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، مسجد الحرم۔ پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا، اس کے بعد؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسجد اقصی۔ پھر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا کہ ان دونوں مسجدوں کے بیچ کتنے وقت کا فاصلہ تھا؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 40 سال۔ دوستو، اس حدیث سے معلوم چلتا ہے کہ مسجد اقصی یا تو آدم علیہ السلام نے خود بنائی یا ان کی کسی اولاد نے۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے حضرت یعقوب علیہ السلام نے بیت المقدس یعنی یروشلم شہر کی بنیاد رکھی، اور پھر یہاں انسانی آبادی پھلنے پھولنے لگی۔ آج سے تقریباً 3000 سال پہلے یعنی 1000 عیسیٰ پورو حضرت داؤد علیہ السلام نے بیت المقدس شہر کو فتح کیا۔ دوستو، اس کے بعد ذرا غور سے سنیے گا۔ داؤد علیہ السلام کے بیٹے سلیمان علیہ السلام نے آدم علیہ السلام کے وقت کی بنی مسجد اقصی کو دوبارہ تعمیر کیا۔ یہی وہ مسجد تھی جسے آج یہودی سولومن ٹیمپل یا فرسٹ ٹیمپل کہتے ہیں۔ یہیں سے ساری کہانی شروع ہوتی ہے۔ 597 عیسیٰ پورو میں ایک بیبلین بادشاہ بخت نصر یروشلم شہر پر اتنا زبردست حملہ کرتا ہے کہ پورے شہر کو تباہ و برباد کر ڈالتا ہے، اور ساتھ ہی سلیمان علیہ السلام کی بنائی وہ مسجد یعنی سولومن ٹیمپل کو بھی توڑ پھوڑ دیتا ہے۔ بادشاہ بخت نصر 1 لاکھ یہودیوں کو مار ڈالتا ہے اور 1 لاکھ یہودیوں کو ہی غلام بنا کر اپنے ساتھ عراق لے جاتا ہے۔ دوستو، یہودی قوم ایک تو اللہ کی سب سے بڑی نافرمان قوم تھی، اور دوسرا یہ قوم اتنی گھٹیا اور مکار قوم ہوا کرتی تھی کہ کوئی بھی ان پر رحم نہیں کرتا تھا۔ خیر، بادشاہ بخت نصر کے حملے کے صرف 100 سال بعد ہی یہودی قوم اسی جگہ ایک اور مسجد بنا لیتے ہیں جسے سیکنڈ ٹیمپل کہا گیا۔ یہودیوں کی دغا بازی، مکاری اور سرکشی جب نہ رکی تو اللہ نے ان پر ایک اور عذاب بھیج دیا۔ سن 70 عیسوی میں رومن عیسائی بادشاہ جس کا نام ٹائٹس تھا، وہ یروشلم پر حملہ کر دیتا ہے اور پورے شہر کو تباہ و برباد کر دیتا ہے، اور ساتھ ہی یہودیوں کے سیکنڈ ٹیمپل کو بھی اس طرح نیست و نابود کر ڈالتا ہے کہ آج 2000 سال بعد بھی یہودیوں کا وہ سیکنڈ ٹیمپل گرا پڑا ہے۔ بس آج اس سیکنڈ ٹیمپل کی ایک دیوار بچی ہے جسے ویلنگ وال یا دیوار گریا کہتے ہیں، اور دوستو اس کا بھی کوئی پختہ ہسٹوریکل ثبوت نہیں ہے کہ یہ دیوار اسی سیکنڈ ٹیمپل کا حصہ ہے۔ اسی دیوار کے آگے یہودی اپنے ماضی کو یاد کرتے ہوئے روتے بلکتے رہتے ہیں۔
सन 70 ईस्वी में रोमन ईसाई बादशाह टाइटस के जेरूसलम शहर फतह करने के बाद से ही वहाँ ईसाइयों की हुकूमत कायम हो गई। ईसाइयों ने यहूदियों को अपना गुलाम बना लिया, यहूदियों को जानवरों से भी बदतर जिंदगी जीने के लिए मजबूर कर दिया। यहाँ तक कि ईसाइयों ने यहूदियों को उनकी इबादत गाह यानी मस्जिद अक्सा में घुसने पर भी पाबंदी लगा दी। यहीं से यहूदियों का डायस्पोरा मूवमेंट शुरू हुआ, यानी यहूदी ईसाइयों के डर से जेरूसलम शहर से निकलकर दुनिया के अलग अलग इलाकों में जाने लगे। 270 ईस्वी में टाइटस के हमले के तकरीबन 550 साल बाद जेरूसलम शहर में मुसलमानों की हुकूमत कायम हो जाती है। ये वो वक्त था जब पूरी दुनिया में मुसलमानों का रोब और दबदबा बढ़ता जा रहा था। बड़ी बड़ी सल्तनतें भी मुसलमानों की ताकत से घबराती थी। सन 637 ईस्वी में मुसलमानों ने जेरूसलम शहर फतेह करने का इरादा बनाया। जंग की तैयारियां शुरू हुई, फौज कायम की गई, मगर जेरूसलम की ईसाई हुकूमत का गला मुसलमानों की ताकत के डर से पहले ही सूख चुका था। इसीलिए ईसाइयों ने बिना जंग के ही मुसलमानों के आगे घुटने टेक दिए और जेरूसलम शहर को मुसलमानों के हवाले करने के लिए तैयार हो गए। इस समझौते में ईसाइयों ने कई शर्तें रखी, जिनमें से 2 शर्तें बड़ी अहम थी। पहली शर्त ये थी कि मुसलमानों का खलीफा यानी हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खुद जेरूसलम आकर ये समझौता करे, और दूसरी शर्त ये थी कि यहूदियों को ना तो जेरूसलम शहर में बसने दिया जाएगा और ना ही यहाँ उनको इबादत करने दी जाएगी। ईसाइयों ने ये शर्त जानबूझकर रखी थी क्योंकि हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पहले ही ये इरादा कर चुके थे कि जेरूसलम में हर धर्म का व्यक्ति रहेगा, उसको अपने धर्म पर चलने और इबादत करने की पूरी आजादी होगी। जबकि ईसाई ऐसा नहीं चाहते थे कि यहूदी यहाँ बसें और अपनी इबादतें करें। आखिर में समझौता ये हुआ कि यहूदियों को जेरूसलम शहर में बसने की तो इजाजत नहीं होगी, मगर वो यहाँ आकर अपनी इबादतें जरूर कर सकते हैं। यहूदी इतिहास में यहूदियों के लिए ये सबसे बड़ा खुशी का दिन था, क्योंकि तकरीबन 500 सालों के बाद कहीं जाकर उनको अपने काबा यानी उस दीवारे गिरिया के पास आकर इबादत करने की आजादी मिली थी, और ये आजादी देने वाले मुसलमान थे। मगर दोस्तों, आज देखिए यही यहूदी लोग भूखे कुत्ते भेड़ियों की तरह फलस्तीन के मासूम मुसलमानों पर हमलावर हैं, और दूसरी तरफ जिन ईसाइयों ने इनको गुलाम बनाया, इन पर जुल्म और ज्यादती की, आज ये यहूदी उन्हीं ईसाइयों के पालतू कुत्ते बने पड़े हैं। खैर, हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौर में जेरूसलम से ईसाई हुकूमत को खत्म कर दिया गया, मगर ईसाई अपनी इस हार को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। ईसाई हर रोज जेरूसलम को वापस मुसलमानों से छीनने के सपने देखते, और सन 1099 ईस्वी में उनका ये सपना पूरा हो गया। ईसाई पादरियों ने अपनी फौज को यहाँ तक कि अपनी आवाम को भी ईसाइयत के नाम पर मुसलमानों के खिलाफ भड़काया और जेरूसलम फतह करने की कस्में दिलाई। ईसाइयत के नाम पर पूरा यूरोप एक हो चुका था। ये जंग फर्स्ट क्रूसेड वॉर यानी पहली सलीबी जंग कहलाती है। इस जंग में ईसाइयों की तादाद तकरीबन 13 लाख तक थी, जबकि उधर मुसलमानों की हालत ये थी कि मुसलमान अपनी अलग अलग सल्तनतों में बंटे हुए थे। यही वजह थी कि ईसाइयों ने इस जंग में मुसलमानों से बैतुल मक़दिस यानी जेरूसलम बड़ी ही आसानी से छीन लिया। इस जंग के बाद ईसाइयों ने पूरे जेरूसलम में खूनी खेल खेलना शुरू किया। मासूम मुसलमान बच्चों, औरतों, बूढ़ों, हर किसी को जो इनकी तलवार के सामने आया मार दिया। तकरीबन 70,000 मुसलमानों को ईसाइयों ने कत्ल किया था। जेरूसलम पर कब्जा करते ही ईसाइयों का सबसे घिनौना रूप तब सामने आया जब ईसाइयों ने मस्जिद अक्सा में घोड़ों का अस्तबल बनाकर वहां घोड़े बांध दिए, जुआ खाना लगाया, मस्जिद अक्सा में बैठकर शराब पीते और नंगी लड़कियां नचाते। मगर दोस्तों, ईसाइयों की ये अय्याशियां ज्यादा दिनों तक ठहर ना पाई। सन 1187 ईस्वी में अय्यूबिद सल्तनत के सिपह सालार सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने हित्तीन की जंग में ईसाइयों को बुरी तरह से शिकस्त देकर बैतुल मक़दिस फतह कर लिया। इसके बाद से यानी 1187 से 1917 ईस्वी तक जेरूसलम पर मुसलमानों की ही हुकूमत कायम रही। अब यहाँ फर्क देखिए, एक तरफ जब ईसाइयों ने जेरूसलम फतह किया तो इन जालिमों ने जुल्म की सारी हदें पार कर डाली, लाखों मासूम मुसलमानों का कत्लेआम किया, जबकि दूसरी तरफ हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी दोनों ने बैतुल मक़दिस फतह करने के बाद भी ईसाई और यहूदी आवाम को एक खरोच भी नहीं पहुंचाई, बल्कि उनको फलस्तीन में रहने की आजादी भी दी। हित्तीन की जंग के बाद
सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने मस्जिद अक्सा में लकड़ी का एक मिंबर रखवाया था, जो कि 1969 तक खुतबे के लिए इस्तेमाल होता रहा। मगर 1969 में माइकल रोहान नामी एक यहूदी ने साजिशन मस्जिद अक्सा में आग लगा दी, जिसकी वजह से मस्जिद अक्सा का कुछ हिस्सा और सलाहुद्दीन अय्यूबी का रखवाया वो बेशकीमती मिंबर भी जलकर खत्म हो गया। दोस्तों, सल्तनत उस्मानिया का नाम तो आपने जरूर सुना होगा। यही वो सल्तनत थी जिससे ईसाई हुकूमतें थर थर कांपती थी, मगर आखिर में सल्तनत उस्मानिया बहुत कमजोर हो चुकी थी। इसीलिए सन 1917 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के साथ ही ब्रिटिश हुकूमत ने सल्तनत उस्मानिया के टुकड़े टुकड़े कर दिए। बैतुल मकदिस भी उस्मानिया सल्तनत का ही हिस्सा था, मगर चूंकि बैतुल मकदिस पर ईसाई, यहूदी और मुसलमान तीनों कब्जा करना चाहते थे, इसीलिए अंग्रेजों ने या यूएन ने बैतुल मकदिस पर अपना कब्जा जमा लिया। यहीं से फिर फलस्तीनियों के साथ धोखाधड़ी, जालसाजी और हद दर्जे का निकम्मापन शुरू हुआ। एक तरफ यूएन ने अरबों से ये वादा किया कि हम बैतुल मकदिस आपके हवाले करेंगे, और दूसरी तरफ यही अंग्रेज यहूदियों के साथ बंद कमरे में ये साजिश रच रहे थे कि हम यहूदियों को फलस्तीन में लाकर बसाएंगे और यहूदियों का एक नया देश बनाएंगे। और फिर वही हुआ जिसका डर था। अंग्रेजों ने दुनिया भर से यहूदियों को फलस्तीन में ला लाकर बसाना शुरू कर दिया। देखते ही देखते फलस्तीन में यहूदियों की ताकत इतनी बढ़ गई कि उन्होंने वहाँ के मुसलमानों को उन्हीं के घरों से बेदखल करके उनके घरों पर कब्जा कर लिया। लाखों फलस्तीनी मुसलमान अपने ही देश में कैंपों में बदतरीन हालत में जिंदगी गुजारने पर मजबूर हो गए। लाखों फलस्तीनी मुसलमानों को कत्ल कर दिया गया। सन 1948 आते आते जैसे ही फलस्तीन पर ब्रिटिशर्स का कंट्रोल कमजोर होता है, यहूदी मौका पाकर फलस्तीन पर कब्जा कर अपनी आजादी का ऐलान कर देते हैं। इसी ऐलान के बाद फर्स्ट अरब इजराइल जंग शुरू हुई, जिसमें अमेरिका, फ्रांस और चेकोस्लोवाकिया जैसे देशों ने जदीद हथियारों से इजराइल की मदद की, जिसकी वजह से फलस्तीन का लगभग 70% हिस्सा यहूदियों के कब्जे में चला गया। सन 1967 में फिर से सेकेंड अरब इजराइल जंग छिड़ जाती है, और इस बार भी अमेरिका, फ्रांस जैसे देश इजराइल का साथ देते हैं, जिसकी वजह से लगभग सारा ही फलस्तीन इजराइल के कब्जे में चला जाता है, जिसमें बैतुल मकदिस भी शामिल था, सिवाय वेस्ट बैंक और गाजा पट्टी के। इसके बाद से अब तक इजराइल फलस्तीनी मासूम मुसलमानों पर जुल्म और ज्यादती की सारी हदें पार कर चुका है। फलस्तीनियों को जबरदस्ती जेलों में बंद करना, मस्जिद अक्सा में घुसकर बमबारी करना, फलस्तीनी औरतों का रेप करना, यहाँ तक कि मासूम बच्चों तक को मिसाइलों से उड़ा देना, ये सब घिनौने काम इजराइल खुले आम कर रहा है। मगर फिर भी इंसानियत, इक्वालिटी, ह्यूमन राइट्स का रोना रोने वाले देश बिल्कुल खामोश बैठे रहते हैं। इनकी जुबान से इजराइल के खिलाफ एक शब्द नहीं निकलता, भले ही ना निकले। हमें इन दोगले देशों से कोई उम्मीद भी नहीं, हमें उम्मीद सिर्फ अपने रब अल्लाह। तो आप ये वीडियो देखकर ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि फ़िलिस्तीन के नागरिकों को कैसे कत्लेआम किया जा रहा है, लेकिन कोई देश सहयोग नहीं कर रहा है, और उनको केवल भरोसा है तो केवल अल्लाह बारक ताला पर भरोसा है। और इस चीज़ का, कोई भी चीज़ का हद हो जाता है तो उसका एक दिन ख़ात्मा ज़रूर होता है। तो इंशाअल्लाह अगर ये अपनी आदतों से बाज नहीं आएंगे तो उसकी भी ख़ात्मा होगी। कई बार आपने इस वीडियो में देखा भी कि किस तरह मुसलमानों का कब्ज़ा होता है। अब वो दिन दूर नहीं, फिर यह बदलाव आएगा, और इंशाअल्लाह बदलाव ज़रूर आएगा। और उम्मीद है कि इसके बारे में भी आपको पता चला होगा कि मस्जिद अक्सा के लिए लड़ाई हो रही है, और किस तरह कैसे कैसे शासन बदलता जाता है। तो फिर वही परिवर्तन का समय आ गया है, और फिर से यह बदलाव ज़रूर आएगा। उम्मीद करते हैं कि हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी, तो शेयर और लाइक करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।